Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, respected sir. Hope you are doing well. I'm here to present mechanics project number 7 on behalf of my other group members. Presenting by Nimra Ramzan, Minahil Mishal, Rabia Bhatti, Taiba Amin, Rafia, Saida Binti Amna, submitting to Sarzishan. Now moving towards our topics that are conservative force, principle of conservation of energy, Earth's gravitational field, and then first topic, that is conservative force definition. A conservative force is a force done in moving a particle from one point to another such that the force in is independent of the path taken by the particle. In general हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा पार्टिकल जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है, जो फोर्स वो डन कर रहा है उस पर वो पार्टिकल पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, ये हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स होती है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. दैट इज the principle of conservation of energy states that the energy is neither created or not destroyed. It may be transformed from one type to another. Theorem number 3 states the principle of conservation of energy. Now move forward article 9.5 from our book Conservative Force and Principle of Conservation of Energy, जिसमें हमारे पास आता है लेट द आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बी द पोजिशन वैक्टर of the particle with at time t and the force F at this instant. The field of the force is called conservative if there exists a scalar function v of x, y, z such that F is equal to minus partial v by partial x I minus partial v by partial y by j minus partial v by partial k z k. ये हमारे पास आ जाता है माइनस डेल वी के इक्वल. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द फंक्शन वी इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑफ द force F or potential of the energy of the particle at any time t or at position of the particle at t. Since curl grid is v is equal to 0, it follows as the F is conservative if and only if F is equal to 0. अब इसमें हमारे पास क्या आता है, अगर हम हमारे पास एक फोर्स गिवन होती है, हम कर्ल ऑफ द फोर्स फाइंड करते हैं, तो उसमें अगर हमारे पास आंसर ज़ीरो आ जाता है दैन हम कहते हैं कि हमारे पास ये फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है. It may be noticed that an arbitrary constant can always be added to the v without alternating the field of the force. Thus, we can also specify the potential of a field of the force with respect to a suitable value taken as zero of the potential. The work done on the particle moving in the from point p1 to p2 is work done is equal to अ, हम इसको अब इंटीग्रेट करेंगे पार्टिकल 2 से पार्टिकल 1 तक एफ डॉट डी एक्स. नाउ हमारे पास एज यूजल आ जाएगा, जैसे हम इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस पी टू. इंटीग्रेशन है तो पी टू से पॉइंट पी वन से पी टू तक का डिस्टेंस ऊपर मार्क कर लिया एंड पार्शल वी बाय पार्शल एक्स प्लस पार्शल वी बाय पार्शल वाई जे प्लस पार्शल वी बाय पार्शल जेड के डॉट डी एक्स आई डी वाई जे प्लस डी जेड के. और इसी तरह हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. देन हमारे पास आ जाता है सॉल्व करने के बाद W इज इक्वल टू वी वन माइनस पी टू. Hence P1 and V2 are potential energies of the particle at point P1 and P2 respectively. Thus we have proved. And then we come to the theorem number 2. That is the work done on the particle in moving from point P1 to P2 under the conservative field of force is difference between potential energies of the particle P1 and P2 respectively. If T is kinetic energy of the particle moving under the influence of conservative of the force thus whose potential energy is V, then E is equal to T plus V. This is called the total energy of the particle at point under the consideration. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थ्योरम थ्री. दैट इज इन कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स the total energy of the particle remains constant throughout the motion. Using theorem number 1 and theorem number 2, the equation 9.2 we have 9.12 we have W is equal to T2 minus T1 and V1 minus
V2। T1 प्लस T1, और जैसे ही हमारे पास वर्क डन इक्वल है T2 माइनस T1 और V1 माइनस V2। जैसे कि हम T डोनेट कर रहा है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को, और V डोनेट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी को। तो वर्क डन इक्वल है चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों को हमने इक्वल रख के प्रूव कर दिया दैट टोटल एनर्जीज ऑफ द एनी 2 पॉइंट्स P1 एंड P2 आर इक्वल, हैंस द थ्योरम इज प्रूव्ड। और दिस स्टेटमेंट थ्योरम 3 इज नॉन एज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट मैंने जैसा कि पीछे के प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में के टॉपिक में बता दिया था। थ्योरम नंबर 3 हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट को प्रूव कर रहा है। देन हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें हमारा पहला पार्ट है प्रूव दैट फील्ड ऑफ द फोर्स इज इन एग्जाम्पल नंबर 1। जो एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास क्यूबी गोरी की बुक पे, उसके आर्टिकल 9.2 इज कंजर्वेटिव। डिटरमाइन द total energy of the particle and the work done in moving the particle, from applied to the particle, power applied to the particle। then अब सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे वी हैव फोर्स उन्होंने गिवन दी हुई है, उसके आर्टिकल से एफ इज इक्वल टू माइनस एम एन स्क्वेयर आर, देन माइनस एम एन स्क्वेयर एक्स आई एंड वाई जे, और कंसीडर द फंक्शन वी इज इक्वल टू माइनस एम एन एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। देन हम इसे एज यूजुअल हमें जैसे पता है कर्ल फाइंड कर लेंगे, तो जिस और हमें पता चल जाएगा फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं। तो हम इसको कंपोनेंट ऑफ, इसी तरह हमारे पास कंपोनेंट आ जाएंगे एक्स फोर्स के अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देन इसी तरह सोल्यूशन ऑफ एग्जांपल 1 से हम सॉल्व कर लेंगे वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एन स्क्वेयर ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एन टी एंड वी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एन टी। सारा प्रोसीजर हम एज यूजुअल सॉल्व करके फिर हमारे पास आ जाएगा जो रिक्वायर्ड है। देन मूव करते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रिलेटेड टू आवर टॉपिक्स, दैट आर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 ए। देन next is question number 7, prove that field for force field F is equal to y cube minus 2xz cube I plus 3 plus 2x minus x uh, x square z cube and yj। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इस कंजर्वेटिव एंड डिटरमाइन इट्स पोटेंशियल। सबसे पहले हमें जैसा कि पता है हम कर्ल ऑफ द फोर्स फाइंड करेंगे, अगर हमारे पास 0 के इक्वल आता है तो वो हमारे पास क्या होगा, ये प्रूफ करेगा कि हमारे पास जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। एज यूजुअल हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया है, और देन हमारे पास यहाँ पे 1 बाय 1 हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर 0 के इक्वल आ गया है, जो कि शो कर रहा है कि फील्ड इज कंजर्वेटिव। देन हमारे पास पोटेंशियल फाइंड करना है। पोटेंशियल के लिए हम क्या करेंगे, डेल डॉट वी फाइंड करेंगे, जिसमें हमारे पास आता है एफ इज इक्वल टू पार्शल वी पर पार्शल एक्स आई प्लस पार्शल वी पर पार्शल वाई जे प्लस पार्शल वी पर पार्शल जेड की। एज यूजुअल हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट है, उसके रिस्पेक्ट हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स आ जाएगा, पार्शियल वी बाय पार्शियल वे, पार्शियल वी बाय पार्शियल जेड, और हमने इनके इक्वेशंस का नाम दे दिया। नाउ हम इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू जी। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी। देन हम इन इक्वेशन से हमारा जो रिजल्ट होगा पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। एंड क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइन वेदर द फोर्स, जो हमारे पास एक फोर्स गिवन है इस कंजर्वेटिव, इसमें हमारे पास बताया नहीं गया कंजर्वेटिव है या नहीं, हमने बताना है कंजर्वेटिव है या नहीं। सो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमने पीछे भी किया है। वी विल हैव टू शो दैट कर्ल ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू 0। हम डेल क्रॉस एफ फाइन कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम आई जे के लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास सबसे पहले आ जाएंगे डेल के कंपोनेंट्स, पार्शल बाय पार्शल एक्स, पार्शल बाय पार्शल वाई, पार्शल बाय पार्शल जी, एंड देन हमारे पास 1 बाय 1 करके एक्स को आई के नीचे आएगा, आई वाला कंपोनेंट, वाई के नीचे जे का कंपोनेंट एंड जेड के नीचे जेड का कंपोनेंट। देन हम क्या करेंगे, एक्सपैंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रो 1। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सपैंड करने के बाद ये सारा सोल्व हो रहा है।
जैसे कि हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें पता चलेगा आंसर ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा, जिससे पता चलता है कि फोर्स इज़ नॉट कंजर्वेटिव. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज show that f is equal to minus a r cube r vector is conservative. एक्चुअली हमारे पास 9 का ए पार्ट हमारे टॉपिक में इंक्लूड है, दैट शोज दैट, जिसमें हमें प्रूफ करवाना है कि फोर्स हमारे पास कंजर्वेटिव है और नहीं. एज यूजल जैसे हमने पीछे फाइंड किया, कर्ल ऑफ द फोर्स फाइंड करेंगे. जो कर्ल ऑफ द फोर्स हमारे पास अगर जीरो के इक्वल आ जाता है तो हमारे पास ये फोर्स कंजर्वेटिव है. सबसे पहले हमारे पास जो फोर्स गिवन थी, फोर्स हमने ले ली, फिर कर्ल डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया, माइनस के डेल को हमने एक तरफ कर लिया, और एज द के कॉन्स्टेंट है तो इसी वजह से, और आर क्यूब और वेक्टर आर आ गया. यूजिंग हम ये वाली टर्म यूज़ करते हुए हमने के और डेल को सेपरेट कर लिया, और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आर क्यूब आर वेक्टर आ गया. देन हमारे पास माइनस के तो सेपरेट हो जाएगा, डेल आर क्यूब मल्टीप्लाई आर वेक्टर आ जाएगा, एंड प्लस आर क्यूब डेल क्रॉस आर आ जाएगा. देन हमारे पास यूजिंग डेल आर एन इज इक्वल टू, हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के 3 आर वेक्टर मल्टीप्लाई आर वेक्टर प्लस आर क्यूब, और साथ में हमारे पास डेल क्रॉस आर है, तो डेल क्रॉस आर हमारे पास जीरो के इक्वल आएगा, तो इसी वजह से ये टर्म जीरो होगी. देन हमारे पास आर वेक्टर का वेक्टर आर के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट है, जो सेल्फ प्रोडक्ट हमने पढ़ा हुआ है जीरो के इक्वल होता है, इसी वजह से ये पूरी टर्म जीरो होगी, जो कि शो कर रही है कि फोर्स कंजर्वेटिव है. नाउ मूविंग टू आवर लास्ट topic, that is Earth's gravitational field. Now that is, Earth pulls all material with a force known as the gravitational force, vertical acceleration, G produced by the force in freely falling bodies known as gravitational acceleration. If mass m of the particle, then by the equation gravitational force W is given by mg is equal to W. Taking y-axis in vertical direction, we have g is equal to minus gj, and then हमारे पास आ जाएगा w is equal to minus mgj. W work done is called gravitational field of the force for those particles whose heights from the surfaces of Earth are small. That's all my about my presentation. Thanks for your attention. Feel free to ask any question. If you have any query about the topics, then you can ask.